Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia, and today we are going to discuss class 8 chapter number 4 materials, metals and non-metals. Okay. So a metal is a material or an element or compound, or you can say alloy, that has a typical hard, opaque, shiny and has a good electrical and thermal conductivity. Okay, metal कोई भी एक ऐसे materials होते हैं जो कि बहुत ज्यादा hard होते हैं. Opaque means आप जिसके आर पार देख नहीं सकते हो. शाइनी सरफेस होती है. इलेक्ट्रिकल हीट और लाइट दोनों के ही बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं. मेटल्स आर जनरली मेलिएबल. मेलिएबल मींस आप अगर उसको काफी देर तक हैमर से बीट करते हो या उसको प्रेस करते हो तो वो परमानेंटली एक शीट का शेप ले लेते हैं और अपनी सरफेस पे कोई भी ब्रेकिंग या क्रैकिंग का आपको निशान नहीं दिखाई देगा. ठीक है, समझ में आया? बिना ब्रेकिंग और क्रैकिंग के वो क्या कर लेते हैं, एक शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं मेलिएबिलिटी. ओके, एज वेल एज फ्यूसिबल. फ्यूसिबल का मतलब होता है कि बहुत इजीली मेल्ट हो जाते हैं. एंड इट्स डक्टाइल. डक्टाइल मींस कैन बी ड्रॉन इनटू एन वायर. पतले पतले वायर्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. ये प्रोसेस, ये जो होते हैं प्रॉपर्टी, ये होती है डक्टिलिटी. ओके, about 91 of the 118 elements in the periodic table are metals. 118 118 elements जो है periodic table में, उनमें से 91 क्या है, metals है. Some elements appear in both metallic and non-metallic form. जो कुछ appears ऐसे भी होते हैं elements जो कि metal और non-metal दोनों के बीच में होते हैं. मतलब कुछ characters उनके अंदर metals के होते हैं, कुछ non-metals के होते हैं, उनको बोलते हैं metalloids. और example gold, silver, iron and copper. So let us discuss a comparative study of the physical property of metals and non-metals. Okay, comparative study करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आएगा. Okay, so first one is lustrous. मैंने आपको बोला था पहले भी, बहुत ज्यादा shiny surface होती है, तो shiny surface means lustrous. Metals have luster. This means they have shiny surface. Example gold, copper, silver and iron, as you can see in the picture also. But non-metals are नॉट लस्टीरियस. वो लस्टीरियस नहीं होते हैं, जैसे कॉयल हो गया. ठीक है. Ductility. Ductility, as I already explained, that metals are ductile. That is, they can be drawn into thin wires. आपने कॉपर के, एल्यूमिनियम के वायर, स्टील के वायर्स देखे ही हैं. ठीक है, उसी तरीके से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉट डक्टाइल होते हैं. इसमें जैसे सिलिकॉन, बोरॉन एक्सेट्रा. Density. According to the density, metals have high density. Okay, because उनके atomic structure जो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो उनके बीच में दो atoms के बीच में जो space होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उनकी density बहुत ज्यादा high हो जाती है. ठीक है, बहुत ही packed structure होती है उनकी. So iron, copper, gold etc. as metals. Density अगर देखी जाए non metals में, वो बहुत ही low density होती है, जैसे hydrogen, carbon. हीट एंड लाइट कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इट इज अलाउड द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजिली. एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा. दीज आर द metals. Okay, and according to the conductivity of heat and electricity, non-metals are the bad conductors. Okay, like iodine, neon. Sonorous is another property that it makes sound when hit with an object. Okay, if metals are sonorous, then it means it make a sound when hit with an object, like bell, string of the guitars etc. And non-metals are not sonorous. That means it cannot produce sound when hit with a hammer. Okay, bromine हो गया, fluorine हो गया. Hardness and softness. According to the hardness and softness, metals are generally hard in nature. Okay, iron, copper, gold जैसा आप देख ही रहे. And hardness, according to the hardness and softness, non-metals are generally soft. Okay, copper, phosphorus, chlorine. Malleability, as I already explained, that after beating it can be converted into the sheets. Okay, so metals are malleable, that is they can be beaten into the thin sheets with a hammer. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आपने देखा होगा, गोल्ड की शीट्स आपने देखी है कभी, और कॉपर की शीट्स देखी है, तो वो malleability प्रॉपर्टी होती है. And if you are going to the non-metals are not malleable but they are brittle. Brittle means आप जैसे उसको हैमर से मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत easily break हो जाएगी. ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा.
Melting and boiling point. According to the melting and boiling point, metal have high melting and boiling point. Okay. Example: iron, copper, gold, aluminium. And non-metals have low melting and boiling point. Melting point आप समझ ही रहे हो, एक ऐसा point जहाँ पे जलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है कोई भी मटेरियल, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक लेवल जिसके बाद में, उस टेम्परेचर के बाद में वो बॉइल होना शुरू हो जाता है. ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है. एक्सेप्शनल केसेस. ओके, काफी ऐसे मेटल्स हैं जो नॉन मेटल के कैरेक्टर शोज करते हैं, काफी ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो है तो नॉन मेटल बट वो मेटल्स के कैरेक्टर शो करते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट. So carbon, okay, carbon is a non-metal. I already explained in previous slides. But carbon का जो form है graphite, okay, graphite, diamond, ये सब carbon के ही forms होती हैं. तो graphite जो है वो एक non-metal है, but it conduct electricity like metals. लेकिन इसमें से electricity conduct हो सकती है. काफी बार exceptional में से बहुत सारे questions पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए इस चीज को. आयोडीन जो है वो भी एक नॉन मेटल है, बट वो लस्टीरियस है, मींस वो शाइनी सरफेस है उसके, मेटल्स की तरह. एल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गए, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जबकि आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं उनका कैरेक्टर होता है कि वो हार्ड होता है. बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल होने के बावजूद भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो. काफी बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि नेम द मेटल्स व्हिच कैन बी कटेड बाय द नाइफ. ओके, ऐसे करके छोटे 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है. सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट जस्ट लाइक नॉन मेटल्स. एंड कार्बन विच इज कार्बन, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं. उसका जो डायमंड फॉर्म है वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है. ठीक है. इफ वी आर गोइंग टू फिजिकल स्टेट, मरकरी इज ए मेटल, बट ये रूम टेम्परेचर पे किस पे रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है. ये भी काफी बार पूछ लिया गया है. मरकरी एक मेटल है बट वो लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर पे. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, ये सारे मेटल्स है, बट इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होती है, जबकि मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है. डायमंड जो कि नॉन मेटल है, अब आपको मैंने बताया कि वो नॉन मेटल है, मतलब हार्ड, लेकिन हार्ड भी है स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए हार्ड है, तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. बट डायमंड जो है वो क्या है, नॉन मेटल है. नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये हार्ड, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, जो कि किसका कैरेक्टर है, जो कि किसका कैरेक्टर है, हमारा मेटल्स का कैरेक्टर है. डेंसिटी. अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है उनकी लो डेंसिटी होती है. ठीक है, और लो डेंसिटी किसका कैरेक्टर होता है, नॉन मेटल्स का होता है. ठीक है, तो ये सारे काफी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. जस्ट स्टडी इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.